اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، مخلصین و مخلصات، آج آپ کی خدمات عالیہ میں آن لائن مجلس امام حسین علیہ السلام پڑھنے کے لیے خادم منبر حسینی سخاوت حسین حاضر خدمت ہے. جو اس وقت لاک ڈاؤن گلوبل لیول پہ چل رہا ہے، اس کی وجہ سے ہم آلموسٹ اپنے اپنے گھروں میں لاک اپ ہو چکے ہیں. اللہ عز و جل سے مجلس امام حسین علیہ السلام کی ابتدا میں درخواست گزار ہوں کہ اللہ عز و جل امام حسین کے والدین شریفین، نانا، امام حسین کے بھائیوں بہنوں، اولاد کے صدقے میں کرونا وائرس سے، کووڈ-19 سے ہر مومن مسلمان کو، ہر انسان کو محفوظ و مصون و مأمون فرمائے. آج کی جو مجلس امام حسین علیہ السلام ہے، آج ہم نے اپنے ان پیاروں کے لیے اور اپنے ان بزرگوں عزیزوں کے لیے منعقد کی ہے کہ جو ہمارے پاس کچھ دن قبل تک مسکراتے چہروں کے ساتھ، متبسم وجوہ کے ساتھ موجود تھے، اور آج وہ یا تو خاک میں دفن ہو چکے ہیں یا وہ فریزرز کے اندر اپنی تجہیز و تکفین و تغسیل و تدفین اور صلاۃ الجنازہ کے منتظر ہیں. اللہ کریم ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. کچھ جنازے پڑھانے کے لیے آج نیو یارک جانا تھا، مگر بدقسمتی سے آج اجازت نہیں مل سکی. ہو سکتا ہے کل بھی نہ ملے، تو اس وجہ سے پھر آج ہم آپ کی خدمت میں حاضری دینے کے قابل ہو گئے، ورنہ کل معذرت کر چکے تھے کہ آج آپ کی خدمت میں نہیں آئیں گے. مگر یاد رکھیے 5 سے 7 کی جو نشریات ہیں وہ ہماری جاری و ساری رہیں گی. میں نہیں آؤں گا تو مولانا وسیم عباس ملک یا مولانا شیخ علی رضا علوی یا مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی یا مولانا سید علی حیدر آبدی یا مولانا جعفر آبدی وغیرہم یا مولانا اصغر نقوی یا مولانا مختار حسین، کوئی بھی ان بزرگوں عزیزوں میں سے آئیں گے. یہ کمیونیکیشنز بہرحال جاری و ساری رہیں گی رمضان تک. پھر رمضان کا جو اسکیجول ہے وہ آپ کو ہم بتا چکے ہیں. انشاءاللہ رمضان کو اسی طریقے سے منایا جائے گا جس کا اعلان آلریڈی انتظامیہ کی طرف سے آپ حضرات و خواتین تک پہنچ چکا ہے. جو منازل آخرت نمبر 68 ہوئی تھی وہ جن مرحومین کے لیے تھی: سیدہ اقبال فاطمہ، شرف سلطانہ، سیدہ فوزیہ زہرا، قمر عباس شاہ، عباس زیدی، محسن نقوی، سید احمد رضا،
जैदी, ज़ीशान हैदर आबदी, शाहीन, रुबीना घुम्मन, अब्बास अली बुखारी, ग़ुलाम सुगरा और एक अमीर जोया के फर्जंद सैयद नसीम अब्बास सैयद, ये इन लोगों के लिए जो पहली मजलिस हुई थी वो ऑनलाइन इन लोगों के लिए थी। आज की जो मजलिस है सैयद इतरत जैदी, मौलाना मलिक सफ़ीर हुसैन अलवी, आगा सैयद सजाद अली शाह जाफरी, हमारी बुजुर्ग खातून मिसेस रिजवी आलिया रिजवी ऑफ मैरीलैंड, मोहम्मद इसहाक शिगरी और उन जमी मरहुमीन मरहुमात के लिए जिनमें एक सिस्टर अजरा भी शामिल हैं, ये भी शिगरी हैं। मैं दुआ करता हूँ कि आज की मजलिस जिन मरहुमीन के लिए मुनअक़िद हो रही है, मौलाना मलिक सफ़ीर हुसैन अलवी, आगा सैयद सजाद अली शाह जाफरी, मिसेस रिजवी आलिया रिजवी, अजरा शिगरी, मोहम्मद इसहाक शिगरी, अल्लाह ताला इन सब, इतरत ज़ैदी, अल्लाह ताला इन सब मरहुमीन और मरहुमात को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अगर आप अपने मरहुमीन की कोई मजलिस कराना चाहें तो हमसे रब्ता कर लें। आइंदा के जो चंद दिन बाकी हैं उन दिनों में इंशाअल्लाह यही सिलसिला मनाजिल आखरत का जारी व सारी रहेगा। आज ये 69वां सिलसिला है इस उन्वान पर, और हमारे कुछ अहबाब ने फरमाइश की है तो मैं उनकी फरमाइश पर सबसे पहले तो समप और रिलेट कर रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ मौजू को। उनका फरमाना ये है कि ख़ास तौर पे जो हमारे नजफ़ और क़ुम के अज़ीज़ान और बुज़ुर्गान बिरादरान देख सुन रहे हैं, उनका कहना ये है कि आगा साहब कुछ बीच में रब्त टूट गया क्योंकि ऐसी आपको फरमाइशें आ गई, तो ज़रा सा आप मरबूत कर दें गुफ्तगू को, बहस को मनाजिल आखरत की किताब से। तो आपको याद होगा मैंने मनाजिल आखरत की किताब में से सफ़ा नंबर 57 से शुरू किया था उन मवाक़िफ़ के बारे में। मवाक़िफ़ यानी जगहें जो रुकने की हैं कि जहाँ खौफ बहुत होगा, अल मवाक़िफ़ुल महूला, वो जो हौल वाली जगहें हैं उनको मैंने शुरू किया था और ये बताया था कि साअत खुरूजिल मरए मिन क़ब्रे, वो घड़ी जो कोई शख्स अपनी कब्र से निकलेगा, उठेगा, वहाज़ सात वाहिदत मिन सात सलासतिल असीबतिल मुहिशा, ये उन 3 घड़ियों में से है कि जो घड़ियाँ बड़ी सख्त, दुश्वार, वहशनाक और खौफनाक हैं। अलबन आदम, ये शेख अब्बास कुमी ने इसे फरमाया और बिहार से उन्होंने इसको नकल भी किया है। मैं ओरिजिन का इसलिए भी जिक्र करता जाता हूँ कि बहुत सारे हमारे अहबाब यकीनन रिसर्च वर्क के लिए या हमारी कमज़ोरियों से वाकिफ़ होने की वजह से परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं आगा साहब ने कहाँ से पढ़ दिया। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, ख़ास तौर पे जब इन अयाम में हम आपकी खिदमत आलिया में ऑनलाइन हैं तो ऑनलाइन में ओरिजिन बताते जाएंगे ताकि आपको ज़हमत ना हो। सूरतुल मारिज की आयत को फ़ज़रहुम यख़ूज़ू व यलअबू हत्ता युलाक़ू यौमहुमुल्लज़ी यूअदून, इन्हें छोड़ दीजिए मेरे हबीब, इन्हें खेल तमाशों में रहने दीजिए, उस वक्त तक ये खेलते रहें, ठट्ठा मजाक करते रहें जब तक ये उस दिन को न पहुंच जाएं
जिस दिन से इनको डराया गया था, जिस दिन ये निकाले जाएंगे मिनल अजदाफ सरा, अल्लाह अकबर, कान्नहुम इला नुसबिन, फिर आगे चल के कहा खाशिअतन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्ला ज़ालिकल यौमुल लज़ी कानू युअदून। उस दिन ऐसे लगेगा कि जैसे मेखें इनके यहाँ गाड़ दी गई हैं और ज़िल्लत इनके ऊपर डाल दी गई है। हज़रत इब्न मसऊद की रिवायत मैंने बयान की थी, याद होगा आपको साबिक़ा मजालिस में, जिसमें हज़रत इब्न मसऊद, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, जिनकी हड्डियाँ पसलियाँ तीसरे खलीफे ने तुड़वा दी थीं, ये फरमाते हैं कुन्तु जालिसन फ़ी महज़र अमीरुल मोमिनीन, मैं अमीरुल मोमिनीन के महज़र में मौजूद था, खिदमत अमीरुल मोमिनीन में शरफ याब था अलैहिस्सलाम। फ़क़ाला फ़िल क़ियामत खमसूना मौक़िफ़ा, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के दिन 50 मौक़िफ़ हैं, 50 ऑब्स्टेकल्स हैं, 50 रुकावटें हैं, 50 मंजिलें हैं रुकने की। मौक़िफ़ जिसमें वक़ूफ़ होता है, वक़ूफ़ देखिए, वक़ूफ़ अराफ़ात आप करते हैं, वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा आप करते हैं, रुकना, स्टे करना। सबसे लॉन्गेस्ट स्टे मवाक़िफ़ क़यामत में है, जहाँ बंदे, हर बंदा 50,000 साल तक रुकेगा। कुरान में इस मज़मून की एक से ज़्यादा आयात आपकी खिदमत आलिया में तिलावत की जा चुकी हैं, और एक आयत तो बिल्कुल जो सराहतन 50,000 साल के एक दिन के बारे में बयान करती है। इब्न मसूद कहते हैं कि मैं मौजूद था तो मौला ने फरमाया कि वह फिल क़ियामत खमसूना मौक़िफ़न व कुल्लु मौक़िफ़िन अल्फ़ा सना, हर मौक़िफ़ अल्फ़ सना होगा। कैसे खड़े होंगे ये बता चुका हूँ, मगर मैं तरतीब जोड़ने के लिए अब आगे मैं इंशाअल्लाह तरतीब से चलूँगा। माज़रत भी चाहता हूँ अपने अजीज़ों ने जो मुझे मुतवज्जे किया है, मैं उनका ममनून हूँ। अल्लाह सलामत रखे आप तमाम हज़रात व ख़वातीन को। कुछ मेरे अजीज़ लिख भी रहे हैं और माशाअल्लाह उन्होंने तकरीबन 68 लिख भी दी हैं, क्योंकि 100 की एक किताब बनानी है, 1000 सफ़े की, बशर्ते ज़िंदगी। अल्लाह आपको हमें करोना मलूना से बचा दे, ताकि हम बाकी मानदा ज़िंदगी में कोई और असासी काम कर जाएं इंशाअल्लाह। अल-मौक़िफ़ुल अव्वल हुवल ख़ुरूज मिनल क़ब्र, पहला मौक़िफ़ तो ये है कि बंदे निकलेंगे कब्र से। युहबसुन्नासु फ़ीहि अल्फ़ सना, लोगों को डिटेन किया जाएगा। हब्स समझते हैं, हब्स से भेजा, ह्यूमिडिटी को हब्स कहते हैं, गिरफ्तार करना, पकड़ लेना, महबूस हो जाना, हब्स ज़दा हो जाना। युहबसुन्नासु, ये मैं बयान कर चुका हूँ पहले, इतनी डिटेल से नहीं। आज की तकरीर इंशाअल्लाह मरबूत हो जाएगी, और आज के बाद इंशाअल्लाह 1 घंटे से ज़्यादा भी मजलिस नहीं होगी। माज़रत चाहता हूँ, ज़रा पिछली मजलिस बहुत लंबी हो गई, 1 घंटे से ज़्यादा मजलिस नहीं होगी, लेस देन आवर में इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 50 मवाक़िफ़ होंगे, हर मौक़िफ़ में अल्फ़ सना रुकना पड़ेगा, 1000 साल। मौक़िफ़ अव्वल हुवल ख़ुरूज मिनल क़ब्र, उसमें क्या होगा 1000 साल। युहबसुन्नासु, महबूस कर दिए जाएंगे लोग, अरेस्ट कर दिए जाएंगे, डिटेन कर दिए जाएंगे, लॉक अप कर दिए जाएंगे लोग। उस दिन में कैसे लॉकअप कर दिए जाएंगे? अल्फ़ सना, 1000 साल तक। हालत क्या होगी?
हुफातन उरातन जयान अताशा। जो एक मजलिस हुई थी अल-महदी में, उसमें डिटेल से बता चुका हूँ ये चारों चीज़ें। हुफातन उरातन जयान अताशा, वो होंगे पाँव नंगे होंगे। बुशरे हाफी बताया था, हाफी जो जिसने जूता न पहना हुआ। हुफातन, वहाँ जूते थोड़ी होंगे, ज़मीन तपरई होगी और बगैर जूतों के होंगे। अगर एक पैर उठाएंगे तो दूसरा जल जाएगा, दूसरा उठाएंगे पहला जल जाएगा, और अगर स्लिप होके गिरेंगे तो बदन के आज़ा जल जाएंगे। हाथों के बल लोग गिरते हैं, हाथों के बल गिरेंगे तो हाथ जल जाएंगे, पुष्ट के बल गिरेंगे तो पुष्टें जल रही होंगी। हुफातन उरातन, कपड़े नहीं होंगे। अल्लाह अकबर। बारिजून, नेकेड, बरहना, कितनी शर्म की बात है। कुछ तो बेशर्म हैं जिनको नंगे होने में लज्जत महसूस होती है। अपने प्यारों के सामने, महरम के सामने बंदे ने अगर कमीज ना पहना हुआ हो, या कोई बंदा घर में बैठा हुआ कमीज उतार कर और बाहर से कोई आ जाए तो बंदा फौरन कमीज पहनता है। वैसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने अहबाब से, घरों में जब आपके यहाँ बेटियां हैं तो प्लीज आप पिराहन उतार के न बैठा करें। ला दीन लिमन ला हया अला, शर्म व हया को मलहूज़े खातिर रखें। यही हाल खवातीन का भी है। एक हमारी बहन ने हमें 2 दिन पहले कॉल की कि आगा साहब, जब तक मेरा शौहर जिंदा रहा मैं बेहिजाबी करती रही, मगर जब से मैं इद्दे में आई हूँ तो मैं मुहज्जब हो गई हूँ। मैंने कहा ठीक है बहन, आपको इसका सवाब मिलेगा, मगर उसका अजाब भी होगा कि शौहर बेचारा सड़ सड़ के दुनिया से चला गया, और आपके बकौल वो खपता था, कहता था हम अशराफ की औलाद हैं, हमें सरबराहना हमारी बीवियों को, खवातीन को सीना निकाल के नहीं चलना चाहिए, तंग कपड़े नहीं पहनने चाहिए। कोरोना वायरस ने हम सब की चूल्हे हिला दी हैं। हम सब इस वक्त मुंतज़िर बैठे हैं, खुदा शाहिद है। वो मौला वाला जुमला जो मैंने इन्हीं मजालिस में इब्तिदा में पढ़ चुका हूँ, अंतुम लना फरतुन साबिक व नहनु लकुम तबउन लाहिक। ऐ कब्रिस्तान वालों, तुम हमसे पहले जाने वाला एक काफिला थे, हम तुमसे मुल्हक होने वाला एक मुंतज़िर कारवां है। न फरार मौत से तुम्हें था, न फरार मौत से हमें है। मोहतरम नाजरीन व नाजरात, मोमिनीन व मोमिनात, मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो आज मनाजिल आखरत के उन्वान पे 69वें मरहले में दाखिल हो गई है, ये समझ लीजिए कि क़यामत के दिन कैसे खड़े होंगे। हुफातन, नंगे पाँव, उरातन, नंगे बदन से। लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर, कुरान ने हमें एक तरीक़ा बताया है कि तक़वा का लिबास जिनका होगा वो वहाँ बरहना नहीं होंगे, तक़वा का लिबास उन्हें छुपा लेगा। जियान, भूखे होंगे। यहाँ देखें, अगर आपको भूख लगी हो, रोज़ा भी ना हो, तो आप जब भूख लगी होती है तो आप नमाज को डिले कर देते हैं, तिलावत कुरान को डिले कर देते हैं। वहाँ क्या हाल होगा जब 1000 साल तक खड़ा होना है, बैठना भी नहीं, बैठने की इजाज़त भी नहीं है। क़यामत को क़यामत कहते ही इसलिए है कि खड़ा ही रहना है। गाँव तकिए पे टेक लगा लेंगे नहीं, खड़ा ही रहना है। बचपन में सुनते थे कि घोड़े खड़े होकर सोते हैं, तो घोड़ों की तरह ही नींद करनी पड़ेगी, मगर नींद कब आएगी जब तांबे की तरह ज़मीन तप रही हो। मैंने एक इश्तिहारी मुजरिम से
اشتہاری ملزم کہتے ہیں یا مجرم. ایک جیل میں پوچھا کہ آپ کو نیند آتی ہے؟ اس بیچارے نے کہا مجھے نیند نہیں آتی ہے، میں سو ہی نہیں سکتا ہوں، کیونکہ جو جرائم میں نے کیے ہیں مجھے خیال آتا رہتا ہے کہ اس کی سزا مجھے بڑی کڑی ملنے والی ہے. ہم نے تو کوئی جرم چھوڑا ہی نہیں، پھر کیسے امید رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن سو جائیں گے؟ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو پاکیزہ کردار کے ساتھ دنیا سے چلے جائیں. جیان بھوکے ہیں، اوور ایٹنگ والے کیا کریں گے؟ بلاخور کیا کریں گے؟ جن کو ویجیٹیبل ممنوع ہے وہ کیا کریں گے؟ کئی کئی دنوں کا اکٹھا کھانے والے اس میدان میں کیا کریں گے؟ عطاشا وہاں پیاسے کھڑے ہوں گے. اللہ اکبر. تبھی تو خطبہ شعبانیہ میں آپ نے سنا ہے، مجھ سے بھی، دیگر علماء کرام سے بھی، مجھ طالب علم نے بھی کئی مرتبہ آپ کی خدمات عالیہ میں وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ، اس مہینے میں اپنی بھوک اور پیاس سے، عطش یوم القیامہ وجوع، جوع یوم القیامہ وعطش، قیامت کی بھوک اور قیامت کی جو پیاس ہے اس کو یاد کرو. جوع یوم القیامت وعطش، یہ تو حالت ہوگی اس ایک منزل میں، ایک موقف میں. یہ مولا علی کی وہ روایت بیان کر رہا ہوں جو پہلے عرض کر چکا ہوں، فرمائش پر ذرا مربوط کر رہا ہوں گفتگو کو. جیسے ہمارے یہاں چھٹیاں ہو جاتی ہیں، کفایہ کا درس ہم پڑھا رہے تھے، چھٹیاں ہو گئی، بحث نواحی پڑھا لی، اب کہا کہ ذرا بحث نواحی کا خلاصہ فرما دیں آغا صاحب، تاکہ ہم آگے جب بڑھیں تو نواحی کی بحث ذہن میں ہو کہ کیا پڑھا تھا، یا اوامر کی بحث، یا جو ہم نے مقدمے کے 14 امور مثلا کفایہ میں پڑھائے اور اوامر شروع کرنے جا رہے ہیں. تو دوستوں نے کہا، عزیزوں نے کہا، نور ہے چشم نے کہا آقا صاحب ذرا 14 کے 14 کو ایک مرتبہ ریپیٹ کر دیں. آج وہ سمجھ لیجیے آپ. فمن خرج من جدثه مؤمنا بالله انزل الله من اللہ تعالی. فمن خرج من جدثه، جس کے جسد سے اس وقت روح نکلے، مؤمنا، یہ دنیا سے جائے، مؤمنا باللہ، والجنت والنار والبعث والحساب والقیامت، اللہ پر بھی ایمان ہو، جنت پر، جہنم پر، اٹھنے پر، نشور پر، حساب و کتاب پر، قیامت پر، ومقرم باللہ، اللہ کا اقرار کرے، لا الہ الا اللہ کہتا رہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا رہے، ومصدقا لنبیہ، ومحمد الرسول اللہ کہتا رہے، اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ کہتا رہے، وما انزل من اللہ تعالی، جو اللہ نے نازل کیا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالۃ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. یہ وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون. یہ سب اس کے ذہن میں رہے کہ جو نازل کردہ ہے ولایت مولا کائنات، عصمت سیدۃ النساء العالمین، امامت ائمہ اثنا عشر وغیرہ اور احکام اسلام، سب پر ایمان ہو بندے کا. وَمُصَدِّقًا لِّلنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، اگر یہ سارے کام کر لے، نجا من الجوع والعطش، بھوک سے بھی نجات مل جائے گی، پیاس سے بھی نجات مل جائے گی. جیسے آپ کے پیارے جو وینٹیلیٹرز پہ پڑے ہیں، ان کو بھوک تو لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، تو کھانا ان کو کیسے دیا جاتا ہے؟ ٹیوبز کے ذریعے. اللہ بغیر ٹیوب کے ایسی کیپیسٹی، ایسی کیپیبلٹی
वजूद के अंदर पैदा कर देगा, जैसे फ्रेश खाना खा के बैठे हों और शरबत पी के बैठे हों। ये गोया पिछली मरतबा अर्ज़ किया था, याद होगा कि ये पर्चा गोया आउट हो गया। ये काम कर लें, अगर आप हजरात व ख़वातीन उस 1000 साला मौक़िफ़ से, परेशानियों से, भूख प्यास से बचना चाहते हैं तो ये कर लें। नंबर 1, ईमान बिल्लाह रखें ताकि दुनिया से जाएं ईमान के साथ जाएं। नंबर 2, ईमान बिल जन्नत। नंबर 3, ईमान बिन नार। नंबर 4, ईमान बिल बास वन नुशूर कि अल्लाह ने उठाना है। नंबर 5, ईमान बिल हिसाब वल किताब। नंबर 6, ईमान महशर, क़यामत का ईमान। नंबर 7, इक़रार बिल्लाह, कलमा पढ़ते हुए जाएं, कलमा तय्यबा, कलमा शहादत, कलमतुल इखलास। नंबर 8, मुसद्दिक़न लिनबीय्यिह, नबी के तस्दीक कुनिंदा बने, ज़बानी कलामी न माने, दिल से खातमुल अंबिया सैयदुल अंबिया इल्लत गाय कायनात माने हुजूर को। 9, व मा अनज़लल्लाहु मिनल्लाहि ताला, ये 9 सितारे, 9 चीज़ें जहन में रख लें। क्या करेगा अल्लाह? इन 9 के बाद नजा मिनल जूअ वल आतश। लीजिए, मरबूत हो गई गुफ्तगू। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, इरशाद फरमाते हैं, वैलका वज़ालिका वज़ालिका यौमुन यजमउल्लाहु फीहिल अव्वलीन वल आखिरीन। क़यामत वो दिन है जिसमें अव्वलीन व आखिरीन इकट्ठे किए जाएंगे, लिनक़ाशिल हिसाब, ताकि उनके हिसाब लिख दिए जाए, नक्श कर दिए जाए, व जज़ाइल आमाल, और उनको आमाल की जज़ा दी जाए। खुज़ूअन क़ियामा, खुज़ू के साथ खड़े होंगे, वहाँ क़ियाम के साथ बैठेंगे नहीं। क़द अलजमहुमुल अरक़, अल्लाहु अकबर, और पसीने में शराबो डूबे हुए। वरजफ़त बिहिमुल अर्ज़, ज़मीन तपी हुई। वअहसनहुम हालन मन वजद लिक़दमैहि मौज़िअन, जब वहाँ ऐसे हालात में होंगे, वअहसनहुम हालन मन वजद लिक़दमैहि मौज़िअन, अगर किसी को पाँव रखने की जगह मिल जाएगी तो वो समझेगा खुशकिस्मत हूँ कि पाँव तो रख सका हूँ, सोने का तो सोचे भी नहीं। वले नफ्सिही मुत्तसआ, जो पाँव रख लेगा वो समझेगा अल्हम्दुलिल्लाह, रिलैक्स हो गया, दम नहीं घुट रहा। शेख कुलैनी ने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से नकल किया, वअन्ना मसलन नास फी वक़ूफ़िहिम यौमल क़ियामत अमाम अल्लाह कस्सहम फिल किनाना। इसकी वज़ाहत 68 नंबर में पूरी कर चुका हूँ कि लोग तीरों की तरह खड़े होंगे। कमा तुस्तरु सिहाम व तुरस्सु फिल किनाना जंबन इला जंबिन, जंबन इला जंब बाज़िहा बिहैसु ला युमकिनु तारीकुहा लिशिद्दति तमासुकिहा बाज़ुहा मिन अत-तज़ायुक़ व तज़ाहुम कज़ालिक यतज़ायक़ुल आदमियून ज़ालिकल यौमुल असीर इला दरजतिन ला यजिदूना इल्ला लिमौज़ि अक़दाम मौज़िअन व मजाला वला युमकिनुहुम अत-तहर्रुक, अल्लाहु अकबर, व तज़हज़ुह अनिल मौज़ि अल्लज़ी वक़फ़ू फ़ीह। ऐसे खड़े होंगे, शेख फरमा रहे हैं कि जैसे जुड़े होते हैं तीर, और तीरों का अलग होना मुमकिन नहीं होता तब जब तक उन्हें कमान से निकाला न जाए, जुड़े ही होते हैं, और उनके पास ज़रा सी और जगह नहीं होती कि तीर थोड़े से और रिलैक्स हो जाए। बंदों के पास कोई जगह रिलैक्स होने की नहीं होगी। अल्लाहु अकबर। 69 को ज़रा हदिया कर दें अपने दोस्तों को, पता चल जाए दुनिया को किस ख्वाब गफलत में हम सो रहे हैं, हमारे साथ क्या होने वाला है। एक कदम रखने की जगह मुश्किल से मिलेगी। अल्लाहु अकबर। हत्ता कि हरकत भी नहीं कर सकेंगे, जैसे तीर जुड़े हैं
ایسے جڑے رہیں گے، انسان کے ساتھ انسان جڑا ہوا ہوگا۔ شیخ صدوق نے لکھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہو قال ومن شک فی فضل علی ابن ابی طالب، یہ بیان کر چکا ہوں، فإنہ یبعث یوم القیامت من قبرہ وفی عنقہ طوق من نار، جو علی کے فضائل کا منکر ہوگا وہ جب قیامت میں اٹھے گا تو اس کے گلے میں ایک جہنم کا طوق ہوگا، ذو ثلاثۃ مئۃ شعبۃ وفی کل شعبۃ شیطان، ہر ایک طوق پر 300 اژدہا بیٹھے ہوں گے، سانپ، اور ہر سانپ کے ساتھ، ہر زنجیر کے ساتھ، وہی سانپ، زنجیر نما سانپ، ایک شیطان ہوگا، یکشر فی وجہ آبسن ویتفل فی وجہ، اس کا ترجمہ کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا ہوں، بس اتنا کہتا ہوں کہ جس طرح سے ذلیل کر سکے گا شیطان ویسے اس انسان کو ذلیل کر رہا ہوگا۔ شیخ کلینی نے لکھا باقر العلوم علیہ السلام سے وَأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُنَاسًا مِنْ قُبُورِهِمْ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَرَبَطَتْ فِي أَعْنَاقِهِمْ لِدَرَجَةٍ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَأْخُذُوا بِأَيْدِيهِمْ قَدْرَ أَنْمُلَةٍ، یوں ہاتھ بندے ہوں گے پس گردن، اور ایک انگشت برابر بھی ہاتھوں کو کھول نہیں سکیں گے۔ وَمَعَهُمْ مَلَائِكَةٌ، کہا تھا 68 میں، یلومونہم شدتاً بشدتن، فرشتے آس پاس ہوں گے، وہ ملامت کر رہے ہوں گے، شرم کرو، حیا کرو، کیا معصیتیں کرتے رہے۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ مَنَعُوا الْخَيْرَ الْقَلِيلَ، اہل محشر کو بتا رہے ہوں گے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خیر قلیل کو روکا تھا، عن الخیر الکثیر، خیر کثیر سے۔ وَهَؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ مَنَعَهُمُ اللَّهُ مِنْ عَطَایَاهُ، اللہ نے تو بڑی نعمتیں دی تھی وسعت کے ساتھ، فَامْتَنَعُوا عَنْ أَدَاءِ حقوق اللہ من اموالہم، انہوں نے اللہ کے حقوق نہیں نکالے تھے، نہ زکوٰۃ دی، نہ خمس دیا، نہ رد مظالم، نہ حق رشتہ دار، نہ حق والدین، نہ حق اولاد، بھائی کا حق، بہن کا حق، رشتہ داروں کا حق، انہوں نے تو غصب کیے حق۔ شیخ صدوق کہتے ہیں حضور نے فرمایا، یہ بڑی طویل حدیث ہے، یہ پچھلے چند مجالس میں ان کو بیان کرتا رہا ہوں، من وشا بین شخصین صلی اللہ علیہ فی قبر نارن تحرقہ الی یوم القیامہ، جو دو لوگوں کے درمیان لڑائی کرائے گا، وسپرنگ ڈالے گا، اللہ اس کے لیے قبر میں، قبر پر اور قبر میں آگ مسلط کر دے گا جو اسے جلاتی رہے گی۔ وَإِذَا مَا خَرَجَ مِنْ قَبْرِ حُفْرَتِهِ، جب وہ نکلے گا اپنی قبر سے اور حفرت سے، صلی اللہ علیہ حیتاً، اللہ اس کے اوپر ایک اژدہا، سانپ مسلط کرے گا، سودا، کالا ڈراؤنا خوفناک، تقطع لحمہ الی ان یدخل النار، اس وقت تک وہ گوشت کاٹتا رہے گا سانپ جب تک یہ بندہ داخل نہ ہو جائے جہنم میں۔ تقطعو بھی پڑھا گیا، قطع یقطع باب تفعیل سے، تقطع لحمہ الی ان یدخل النار۔ حضور نے فرمایا من ملا عینہ فی النظر الی المرأة الغریبہ، جو کسی نامحرم عورت کو دیکھے گا، حشرہ اللہ یوم القیامت مسمرا بمسامیر ناریہ حتی یحکم الناس، یحکم اللہ بین الناس، اس بندے کے بدن میں، آنکھ سے لے کر بدن میں، اللہ ریڈ آئرن کے کیل میخیں گاڑتا رہے گا جب تک کہ دوسرے لوگوں سے اللہ فارغ حساب نہیں ہو جائے گا۔ فَيَحْكُمُ عَلَيْهِ أَن يُؤْخَذَ إِلَى النَّارِ، جب دوسرے لوگوں سے اللہ فارغ ہوگا، جس کے بدن میں میخیں ریڈ آئرن کی گڑ چکی ہوں گی، ایک ہی لفظ میں کہہ دے گا فرشتو اس کو جہنم واصل کر دو۔ فیض الکاشانی نے اپنی کتاب علم الیقین میں، مدرسہ فیضیہ میں میں طالب علم رہا ہوں، وہ
आयतुल्लाह फैज़ काशानी ही ने बनाया था। उन्होंने लिखा है सही रिवायत, अन्ना शारिब अल खम्र युहशरु यौमल क़ियामत वफ़ी उनुक़िही कूज़ुन वफ़ी यदिही क़दहुन वहुव अशद्दु जीफ़तन मिन कुल्लि मैततिन अला वजहिल बसीतति यमुर्रु बिही मिनल खलाइक़। मेरे तमाम नूर हाय चश्म, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे अजीज़, मेरे बुज़ुर्ग, मेरी माएँ बहनें बेटियाँ, तसल्ली कर लें, मैंने बहस को मरबूत कर दिया जो बीच में कुछ रुकावटें आ गई थी। और अब कल इंशाअल्लाह फिर मैं अल्लाह के हुक्म से ठीक 6 बजे एक और मजलिस पढ़ रहा हूँ। नाम भेज दें जिन जिन के मरहूमीन यहाँ पाकिस्तान कोरोना गैर कोरोना से हुए, नाम भेज दें इंशाअल्लाह। तो मैं आप हजरात ख़वातीन की खिदमत में कल फिर हाज़िर होऊंगा। आज की हद तक यही हदिया कबूल कर लीजिए। इस रिवायत शेख सद्दूक को जो पैगम्बर से उन्होंने नकल की है, मैं इंशाअल्लाह, बिहार से है ये, मैं पूरी तफसील के साथ बयान करूँगा। और आगे भी है, एक और रिवायत भी है, उसको भी मैं फैज़ काशानी, माफ़ करना, फैज़ काशानी वाली रिवायत को भी और फिर शेख सद्दूक की रिवायत को भी बयान करूँगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आप हज़रात ख़वातीन, बहुत मेहरबानी फरमा रहे हैं। मजालिस में या दुरूस में कोई कार्ज वगैरह नहीं ली जाएंगी, इसका तक़द्दुस पामाल ना हो, ख़ास तौर पे मजलिस का। इसके बाद जो हम प्रोग्राम मुख्तसर सा आज भी करेंगे छोटा सा, उसमें आपकी कॉल्स ले लेंगे। आज हमने इस्तिखारा किया है इस छोटे कुरान से जो यहाँ स्टूडियो में पड़ा हुआ है कि क्या चीज़ शुरू करें। इसमें यह आया है कि एक दरस फ़िक़्ह शुरू करें, जबकि हमने अल कुरान सेंटर में दरस फ़िक़्ह शुरू किया हुआ था, काफ़ी हद तक आगे भी बढ़ गए थे, मगर किसी वजह से हम वहाँ कंटिन्यू नहीं कर सके और कुछ रिकॉर्डिंग भी उसकी प्रोफेशनल नहीं है। इंशाअल्लाह हम शुक्रगुज़ार हैं हमारे कंट्रोल रूम वालों के भी, मौलाना वसीम अब्बास मलिक साहब की जो टीम है उनके भी, मौलाना शेख अली रज़ा आलवी के भी, और मलिक हुसैन रज़ा, मलिक हसन रज़ा और खलीफा मेहदी हसन, मीसम जैदी, कमर जैदी, फैज़ान चट्ठा, हसन चट्ठा, शाहजेब रिजवी, अख्तर अब्बास चौधरी, हाफिज़ मुबशर नज़ीर, इन सब के हम बड़े शुक्रगुज़ार हैं कि इनकी मेहरबानी से, मंजूर मियाँ और अब्दुल मुक़ीत ख़ान कि इनकी मेहरबानी से काफ़ी हमारा सफ़र करीब हो रहा है और बड़ी प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग आजकल हो रही है। जो हज़रात ख़वातीन हमारी इन रिकॉर्डिंग्स को किसी टीवी चैनल पर चलाना चाहें तो हमारी तरफ से बिल्कुल आपको इजाज़त है। अल्लाह करीम आप सबको ज़िंदा और सलामत रखे। मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मनाज़िल आखिरत नंबर 69 के उन्वान पर तकरीबन इख्तिताम पजीर हो गई है। इंशाअल्लाह अगली मजलिस में हम बिल्कुल आप रब्त के साथ चलेंगे और उसमें हम फिर वजाहत बयान करेंगे। पिछली कुछ मजालिस में हमसे कोताही भी हो गई कि हमने टोटली तौर पे इस टॉपिक को टच नहीं किया, तो माफ़ी भी चाहते हैं। अल्लाह करीम आपको सलामत रखे और आपकी तवज्जो दिलाने के बेहद शुक्रगुजार भी हैं। लेस देन आवर की मजालिस होंगी, मोर देन आवर बिल्कुल नहीं होंगी, बल्कि आइंदा हर प्रोग्राम हमारा इंशाअल्लाह लेस देन आवर का होगा। बीच में जो कोताही होगी उसकी भी माफ़ी चाहते हैं। मुजद्ददन मैं दुआ करता हूँ, आज की मजलिस है हमारे बड़े भाई जो मेरे वालिद साहब क़िबला के शागिर्द भी थे और मेरी वालदा माजिदा हयात हैं। जब भी मैं जाता हूँ तो पहले बेचारे मेरे इन भाई का पूछती थी और लफ्ज़ कहती हैं हमेशा कि सफ़ीर का क्या हाल है। सराकी में पूछती हैं सफ़ीर का क्या हाल। अल्लाह ताला हमारे भाई सफ़ीर को जन्नत में जगह दे। बड़े नेक इंसान थे, मुतदय्यिन थे, बुज़ुर्ग थे, मुझसे तो 10-12 साल अल्लाह ज़ाहिर बड़े थे, क्योंकि मैं बच्चा था तो इनको मैंने जवान देखा है। अल्लाह करीम उनको जन्नत में जगह दे। उन्होंने हमारे अल मेहदी सेंटर की बड़ी खिदमत की। अभी थोड़ी देर पहले जनाब चौधरी खावर अली खावरी साहब जो स्पोक पर्सन है हमारे अल मेहदी सेंटर ब्रुकलिन के, बहुत खूबसूरत उन्होंने बात की कि इन लोगों ने हमारी बड़ी खिदमत की है, यानी सेंटर की। हम और तो कोई खिदमत उन बेचारों की क्या कर सकते हैं, आज वो दुनिया से चले गए। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह मौलाना मलिक सफ़ीर हुसैन अलवी इब्ने मलिक अहमद ख़ान को जन्नत में जगह अता फरमाए। हम दुआ करते हैं बहिश्ती आगा जो हमारे बहिश्ती में पुकारता था, आज तो वो बहिश्त में इंशाअल्लाह चले गए। आगा सैयद सजाद अली शाह जाफ़री, अल्लाह ताला उनको बहिश्त में जगह दे। मीर बादशाह के फ़र्जंद हैं ये, इब्ने मीर बादशाह, अल्लाह करीम उनको जवार अहल बैत में जगह दे। जितने भी मेरे भाई बहन हैं
गुजारिश करूँगा आइंदा उनके वालिद का नाम भी बता दिया करें ताकि हम मजालिस में, और कल के लिए बेशक बता दें, कल एक मजलिस और हम कर रहे हैं। अगर आपके मरहूमीन फ़िलहाल मार्च और अप्रैल में भी नहीं फौत हुए फिर भी हम ले लेंगे, कोई बात नहीं। मजलिस इसाले सवाब है, मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। नाम भेज दीजिए हमें। बहुत शुक्रिया आपका। 8562665786 पे। हज़रात ख़वातीन, ये मजलिस मोहम्मद इसहाक शिगरी, ज़ाहिरन इसहाक नाम है, कुछ लोगों ने आशिक लिखा है, तो हमारे आज ही अज़हर की कॉल आई थी, मज़ीद पूछ लेंगे, और शाहिद की भी कॉल आई थी। जो और भी शिगरी फैमिली में अज़रा हैं जैसे, अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता फरमाए। आलिया रिजवी, ये हमारी मोहसिना है, मैं भी इनके घर रह चुका हूँ, बड़ी हमारी बुज़ुर्ग खातून है, बहुत ही इन्होंने हमारा ख्याल रखा। जनाब अब्बास रिजवी जो पायनियर है इदारा जाफरिया के, उनकी मिसिस, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम नसीब फरमाए। हमारे भाई थे सैयद इतरत ज़ैदी, इन्होंने बड़ा हमारा ख्याल रखा, हमारी फाउंडेशन के बड़े मुआविन थे। इनके बेटे रज़ा से बात हुई थी, और सज्जाद यूसुफ से भी, जो इनके रिश्ते के भाई हैं, अल्लाह करीम उनको भी जन्नत में जगह दे। और जितने भी और मरहूमीन मरहूमात हैं, सैयदा इकबाल फ़ातिमा जाफ़री बिनते आले अब्बास रिजवी, शरफ सुल्ताना बिनते सैयद आग़ाज़िया, सैयदा फ़ौज़िया ज़हरा बुखारी बिनते शौकत अब्बास बुखारी, सैयद कमर अब्बास शाह नकवी इब्ने सैयद नबी अली शाह, सैयद अब्बास अली ज़ैदी इब्ने सैयद अली ज़ैदी, सैयद मोहसिन अख्तर नकवी इब्ने सैयद मोहसिन अख्तर नकवी, जो फ़र्जंद सैयद ज़हीर नकवी के, और सैयद अहमद रज़ा इब्ने मोहम्मद रज़ा ज़ैदी, डॉक्टर सैयद ज़ीशान हैदर आबदी इब्ने सैयद तासीर आबदी, शाहीन बिनते हबीबुर रहमान, रुबीना घुमर बिनते मोहम्मद नसरुल्लाह चौधरी, अब्बास अली बुखारी इब्ने सैयद गालिब अली बुखारी, ग़ुलाम सुगरा बिनते गुलजार हुसैन, यासिर अब्बास जोइया इब्ने मौलाना अमीर जोइया। अल्लाह इन तमाम हज़रात व ख़वातीन को माफ़ फरमाए। पूरी दुनिया में अनहाय आलम में जितने मोमिनीन मोमिनात लुक़्मा अजल बने हैं कोरोना से, या मार्च अप्रैल में जो दुनिया से गए हैं, अल्लाह उन सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह हमारी जो फाउंडेशन है अल महदी फाउंडेशन, इससे जो भी मुतल्लक़ीन हैं, इसके जो भी मुआविनीन हैं, अल्लाह उनके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। अल महदी सेंटर ब्रुकलिन में जो मोमिनीन मोमिनात थे और चले गए दुनिया से, अल कुरान सेंटर वाले, हौज़ इल्मिया वाले, अल महदी सेमिनरी वाले, इन सब को अल्लाह ताला जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे। हमारे नाज़रीन नाज़रात के रिज़्क़ माल में बरकत दे, अहल व अयाल में बरकत दे, कोरोना मलूना से हम सबको नजात दे। जो वेंटिलेटर्स पे पड़े हैं बीमार करबला के सदक़े में, वो शिफायाब हो इंशाअल्लाह। कल बशर्ते ज़िंदगी 5 से 6 बजे तक मैं वो वादा पूरा करूँगा बरक़ात इसमें आज़म में, कि मैं वो चीज़ बताऊँगा कि पास हो तो कोरोना ना लगे। ज़ाहिर है कि हमने डूबते को तिनके का सहारा, ऐसे कोई रिवायत तो नहीं लिखी हुई कि ये तावीज़ रखें तो कोरोना नहीं लगेगा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि ये पास रखें तो वबा नहीं आएगी, मुतअद्दी मरज़ नहीं आएगी, मोहलिक बीमारी नहीं आएगी, लाइलाज बीमारी नहीं आएगी, हादसा नहीं होगा, वगैरह वगैरह, घर नहीं जलेगा। वो मैं कल एक किट बयान करता हूँ, और बल्कि मैं किट तैयार करता हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़, मैं किट तैयार करता हूँ अल्लाह के फजल करम से। ये मजलिस है, इसमें तवील ज़हमत नहीं दूँगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। नाज़रीन नाज़रात को दूसरों को बताएँ। कल इंशाअल्लाह 5 से 6 बजे तक तो सिर्फ ये बताएंगे कि क्या रखें पास कि कोरोना ना लगे, मुतअद्दी बीमारियां ना लगें, और इंशाअल्लाह मजलिस भी कल एक और पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया। आज छोटा सा दर्स फ़िक़्ह शुरू करते हैं अभी थोड़ी देर के बाद। अजीज़ों, बुज़ुर्गों, माओ, बहनों, बेटियों, भाइयों, ये जो मजलिस है इमाम हुसैन गरीब की, नवाब करबला की, शहनशाह नैनवा की, गरीब ज़हरा की, हम इसलिए करते हैं ला यौम का यौम का या अबा अब्दिल्लाह। हम अपनी हर मुसीबत को मुल्हक़ करते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाइल पर। एक आलिम दीन थे, उन्होंने फ़र्ज़ंद रसूल
दिलबंद अली व बतूल सैयदुश्शुहदा इमाम आली मकाम को ख्वाब में देखा तो देखा कि सारे जख्म इमाम के मुंदमिल हो गए, मगर 2 जख्म बाकी थे। उन आलिम ने पूछा कि किबला ये जख्म क्यों बाकी है? कहा सीने पे जख्म है अली अकबर की जवानी का और पुश्त पे जख्म है अबुल फजल अब्बास की मजलूमियत से शहादत का। अल्लाह अकबर, ला यौम का यौम का या अबा अब्दुल्लाह। मैंने एक मरतबा रोज़ा इमाम हुसैन में एक मजलिस, पूरी ज़िंदगी में एक मजलिस, उर्दू में, इंग्लिश में, अरबी में, फ़ारसी में, सराइकी में पढ़ी। ये 5 ज़बानों में एक मजलिस। सैयद अब्दुल रऊफ हुसैनी आज भी जिंदा है, और एक मेरे अजीज़ आगा हसन, जिनके भाई मेरे शागिर्द थे कुम में, वो पेश नमाज हैं इमाम हुसैन के रोज़े के, वो भी इसके गवाह हैं। और भी मेरे बहुत सारे इसमें गवाह हैं। 79 लोग थे मेरे समेत, हम काफिले के, और मैंने मजलिस पढ़ी थी। वो लोग हयात हैं, एक का दुक्का उनमें से दुनिया से चले गए, वरना वो गवाही देंगे इस बात की कि मैं जब मजलिस पढ़ चुका तो अब्दुल रऊफ दौड़ते हुए आए। उन्होंने कहा कि शेख, वो मुझे नहीं जानते थे, तूने क्या पढ़ा है कि छत रो रही है? आज मैं वो मसाइब सुनाऊंगा आपको जिससे इमाम हुसैन के हरम की छत रोई थी, वो सुन लीजिए। वो तवील मसाइब थे, हर ज़बान में अलग थे, मगर मैं उर्दू में 2 जुमले कह के बस आपकी जहमतों को तमाम करता हूँ। मैंने मसाइब ये पढ़ा था कि जब बहन हंगामे कत्ल हुसैन ज़ाहिरन दुनियावी तौर पे, ज़ाहिरी तौर पे बेबस नजर आती थी, तो कभी दाएं दौड़ती थी, कभी बाएं दौड़ती थी, कोई चारा लगाने की कोशिश करती थी। जब कोई नजर ना आता तो रोज़ा रसूल का रुख करके कहती थी, नाना सल्लल्लाहु अलैहि का मलिकुस्समा, आपकी तो इतनी नाज बरदारी फरिश्ते उठाते थे, ये आप ही का तो हुसैन है। ये जुमला बीबी ने कई मरतबा कहा है। वो मुरम्मन बित्तिमा का, वो तो बात का है, मगर जब ज़बा हो रहे थे फिर भी अपने नाना को बुलाती थी, कभी अपने बाबा को आवाज़ देती, कभी अपनी अम्मा को बुलाती, कभी अपने भाई हसन को। ये आदत है लोगों की, जब मुसीबत नाजिल हो तो प्यारों को बुलाया जाता है जिन पर ज़्यादा मान हो, जिन पर नाज हो, जिन पर यकीन हो कि वो कभी भी इस्तिगासे पर लब्बैक कहने में पहलू तही नहीं करेंगे। खुशकिस्मत हो अली के शियो, अली की बेटी ने आपको भी उसी वक्त याद किया, यानी उसको यकीन था मेरी आकाज़ादी को कि मेरे बाबा के शिया भी हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। फरमाती थी, भैया काश बाबा के शियों की कोई बस्ती करीब होती तो मैं बुर्का ओढ़ के चली जाती और उनसे कहती, तुम्हारे मौला का फर्जंद ऐ शियो बेजुर्म बेखता ज़बा हो रहा है। शियो कदर करना अपनी। आपको तो उस वक्त याद किया है मौला इमाम हुसैन ने जब अली असगर की लाश उठा के खड़े थे तो फरमाते थे, शियती महमाइन शरीफ तुम अज़ब माइन फस्कुरूनी। ऐ शियो, जब भी ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास को याद करना, मेरा जिक्र करना। और समय तुम बेगरीब नौ कतील फंदबूनी, किसी गरीब और शहीद का कोई किस्सा सुनना, दुख भरा रंजो अलम भरा, तुम मुझ पर आवाज के साथ नुदबा करना, चीखे मार के रोना। या लैतनी कुंतुम फी यौमिन आशूरा जमीअन फतंजुरूनी,
कैफ अस्तस्की लितिफली फअबौ अयरहमूनी। ऐ मेरे शियो, काश तुम करबला में होते और देखते मैं इस सगीर के लिए कैसे पानी मांग रहा था और किस तरीके से ये जालिम इनकार कर रहे थे। सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। या हुज्जत अल्लाह अला अर्ज़, या सय्यद शुहदा, या बाबा नजातिल उम्मा। हम तवस्सुल करेंगे अपने इस मजलूम इमाम की तरफ और फिर अल्लाह से चाहेंगे, या अल्लाह तुझे वास्ता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गुर्बत, मजलूमी, ज़ख्मों, तकलीफ़ों, दुखों, आलाम और मसाइब का, हमें मुसीबत करोना से निजात अता फरमा। तुझे वास्ता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़िक्र पाक का, जिसे सुनने के लिए फरिश्ते अर्श तक से आते हैं, आसमानों से आते हैं। आज की इस मजलिस का सवाब मौलाना मलिक सफ़ीर हुसैन अलवी, इब्ने मलिक अहमद ख़ान, आगा बेहश्ती सैयद सजाद अली शाह जाफ़री, इब्ने मीर बादशाह, इसहाक शिगरी, अज़रा शिगरी, मिसेस रिजवी आलिया रिजवी, सईद इतरत ज़ैदी, इकबाल फातिमा, शरफ सुल्ताना, फौजिया, ज़ाहरा, कमर अब्बास, अब्बास अली, मोहसिन नकवी, अहमद अली, ज़ीशान हैदर आबिदी, शाहीन, रुबीना गुम्मन, अब्बास बुखारी, ग़ुलाम सुगरा, यासिर अब्बास और नाज़रीन व नाज़रात के, हाज़रीन व हाज़रात के, मुआमिनीन व मुआमिनात के, मेरे और हम सब के मरहूमीन को ईसाल फरमा और उनके सगायर व कबाइर से दरगुजर फरमा। या अल्लाह हमारी बाकी मानदा ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमा। या अल्लाह अगर तूने मौत में लिख दी है इमाम हुसैन के सदक़े में, जिस तबीब के खाने नियाज से अर्शियों ने शिफा पाई, आज हमारी मौत को बदल के हयात लिख दे। या अल्लाह कोरोना वायरस को तबाह बर्बाद फरमा। या अल्लाह हमें तक़वा और ज़ुहद की किश्ती पर सवार फरमा, किश्ती अहले बैत पे सवार फरमा। हमारी नस्लों में कोई मुशरिक, कोई गुस्ताख रसूल, कोई मुनकर विलायत अली, कोई मुनकर आज़ाए हुसैन पैदा न कर। या अल्लाह ता क़याम क़यामत हमारी नस्लों में तय्यब व ताहिर औलादे पैदा फरमा। हालिया जो हमारी औलादे हैं, इमीडिएट हमारी औलादे, इनको तय्यब व ताहिर बना। हमारे अखलाक व अतवार को तय्यब व ताहिर बना। अव्वल वक्त में नमाज की तौफीक दे, डेली कुरान पढ़ने की तौफीक दे, अपने अपने मरहूमीन को याद करने की तौफीक दे, तौबतुन नसूहा की किश्ती पे सवार होने की तौफीक दे। हमारी तौबा और मग़फ़िरत को कबूल फरमा। या अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे माँ बाप के गुनाह माफ़ फरमा, मंजूरीन मज़कूरीन के गुनाह माफ़ फरमा। या अल्लाह जो वेंटिलेटर्स पे अभी भी उम्मीद में हैं या उनके घर वाले उम्मीद में हैं, या अल्लाह उनको सेहत अता कर। या अल्लाह जो कोरोना वायरस में पॉजिटिव रखते हैं उनको नेगेटिव करार दे। कैंसर वालों को शिफा दे, हार्ट वालों को शिफा दे, शुगर वालों को शिफा दे, ब्लड प्रेशर वालों को शिफा दे, ब्रेन हेमरेज वालों को शिफा दे, जो पैरालाइज हैं, फलज ज़दा मफलूज, उनको शिफा दे, बेबरकती को बरकत में बदल दे, मकरूज़ों के कर्ज अदा फरमा दे, आर्थराइटिस वालों को शिफा अता फरमा, जो बदख्वाबी का मर्ज रखते हैं, सो नहीं सकते, उन्हें सुकून की नींद अता फरमा। या अल्लाह तुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल का वास्ता, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पाकीज़ा ज़िक्र का वास्ता, उनकी ज़ात मुक़द्दस का वास्ता, उनके ज़ख्मी जसद का वास्ता, जो बदन उनका चटाई में दफन है, उनके टुकड़ों का वास्ता, या अल्लाह कटी हुई हड्डियों और पसलियों का वास्ता, हम सबको कटने से, बिगड़ने से या अल्लाह महफूज फरमा, टुकड़ों में बटने से महफूज फरमा। गुलूए मुबारक अली असगर का वास्ता, जो गले की मरज लग रही है कोरोना की शक्ल में, और जिन जिनको गले की तकलीफ है दूर फरमा। या अल्लाह हमारी नाक को बुलंद रख, नाक से ये मरज जा रहा है, इस मरज को नाक तक पहुँचने की तौफीक न दे। या अल्लाह हमारे दिलो दिमाग को तक़वियत अता फरमा। या अल्लाह कुछ लोग कोरोना वायरस की इस मुसीबत, आराम की घड़ी में, अजाब की घड़ी में, इम्तिहान की घड़ी में भी शरारतें कर रहे हैं। इन शरारतियों को
शरीफों के करीब कर और इनको तौबा करने की तौफीक अता फरमा। जो र्यूमर्स फैलाते हैं, फ़न बनाते हैं, ख़ास तौर पे हम बेचारे तालिब इल्मों का, रिजाल दीन का, खिदमत गुजारान मज़हब का, या अल्लाह जो फ़न बना रहे हैं, या अल्लाह इनको हमारा फ़न बनाने से दूर रख और हमें अजियत करने से बाज रख और इनकी गिरफ्त न करना, इन्हें भी माफ़ फरमाना। हमारे मराजे की ज़िंदगी दराज फरमा, रहबर मुअज़्ज़म की ज़िंदगी दराज फरमा। आयतुल्लाह उज़्मा हाफिज़ बशीर हुसैन नजफ़ी, आयतुल्लाह उज़्मा आग़ा सैयद अली ख़ामनाई, आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली सीस्तानी, आयतुल्लाह उज़्मा आग़ा हकीम, आयतुल्लाह उज़्मा शेख अहमद फ़ैयाज़, शेख इसाक़ फ़ैयाज़, आयतुल्लाह उज़्मा उस्ताद मोहतरम नासिर मकारिम शिराज़ी, आयतुल्लाह उज़्मा उस्ताद मोहतरम वहीद खुरासानी, आयतुल्लाह उज़्मा उस्ताद मोहतरम जाफ़र सुबहानी, आयतुल्लाह उज़्मा उस्ताद मोहतरम हुसैन नूरी, आयतुल्लाह उज़्मा बिरादर बुज़ुर्ग अली गुरगानी, आयतुल्लाह उज़्मा बुज़ुर्गवार शुबैरी ज़ंजानी वग़ैरह जो मराजे किराम है, या अल्लाह उनकी ज़िंदगियाँ दराज फरमा, उलमाए आलाम का साया हमारे सरों पर कायम दायम फरमा। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, बरतानिया, मशरिक, मगरिब, दुनिया में जहाँ जहाँ, ईरान, इराक़, जहाँ जहाँ शिया उलमा, शिया कम्युनिटी, शिया खिदमत गुजारान, मराकज़ व मसाजिद के मुतवल्लियान रहते हैं, या अल्लाह उन सब को ज़िंदा व सलामत रख और हमारी मस्जिद की रौनक बहाल फरमा। हमारे दोनों मस्जिद के खिदमत गुजार या अल्लाह बेहश्ती सजाद और जन्नती सफ़ीर मेरे भाई दुनिया से चले गए, या अल्लाह इनको जवार इमाम हुसैन की जगह अता फरमा और जितने मंजूरीन हैं उनको शिफा अता फरमा। मुझ गरीब के ये कज मुझ सुखन अपनी बारगाह में कबूल फरमा और कोई गलती हो गई हो साहबन तो उसे माफ़ फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़ी फ़रज मौलाना साहिब ज़मान वजअलना मिन अअवानिही व अंसारिही। अल्लाहुम्मा अशफ़ि सद्र अल हुसैन बिज़ुहूरिल हुज्जा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज।